welcome you all in chemistry classes. In this video, I will explain you about structure of xenon compounds and uses of noble gases. So first we will see the structure of xenon compounds. First structure is of XeF2. अब हम पहले XeF2 का structure देखेंगे. So you can see there Xe bonded with 2 fluorine and bond angle is 180. So we can easily say the structure is linear according to Vesper theory. We will see their hybridization. Is 5s2 and 5p6. So in ground state, in 5s there is 2 electron and in 5p there is 6 electron and 5d is empty here. But in excited state, the 1 electron of 5p is excited and go into 5d orbital. So now we have 2 unpaired electron which is paired by fluorine. So there is a hybridization is sp3d. So the structure of sp3d is, so next is XeF4. You can see the structure of XeF4 which is square planar वर्ग समतली. यहाँ पे XeF4 में अगर हम देखें तो अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, we know that in XeF4 there is 4f, so we need 4 unpaired electrons. So here another p block electron is excited and go into d orbital. Next structure is structure of XeF6, xenon hexafluoride. So you can see the structure of xenon hexafluoride, that is xenon and 6 fluorine are there and 1 lone pair. So the shape is distorted octahedral. In Hindi it is विकृत अष्टभुजाकार होता है. And if we will talk about their hybridization, so the hybridization of XeF6, so the hybridization of xenon hexafluoride is sp3d3. This is xenon's excited state where this electrons of p block or p orbitals are excited and go in d orbitals. So we get the hybridization of xenon hexafluoride which is sp3d3 and the structure is distorted octahedral. Now next is structure of XeOF4. So the structure of XeOF4 is, see here, this is the structure of XeOF4 which is square pyramidal, or you can say varg pyramidi. So this structure is look like the structure of XeF4. See this, but here is 2 lone pair, but in this case in XeOF4 there is 1 oxygen also, so it bonded in place of 1 lone pair and we get the structure which is square pyramidal. Now next is the structure of XeO3. So the structure of XeO3 you can see here. See this structure. This is XeO3 where 3 oxygen are bonded with Xe and 1 lone pair is left. So the structure is pyramidal, or you can say trigonal pyramidal, त्रिकोणीय pyramidi structure बन रहा है. You can see easily. The hybridization is there is sp3d. This now we will discuss our next topic which is uses of noble gases. अब हम उत्कृष्ट गैसों के उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे. तो जो उत्कृष्ट गैस का फर्स्ट यूज़ है वो हम पहले यूज़ ऑफ हीलियम पढ़ रहे हैं, मतलब हीलियम जो गैस है उसके यूजेस को पढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट यूज़ है हीलियम का. इट इज़ यूज्ड इन फिलिंग बलून्स. हीलियम गैस हल्की होने की वजह से गुब्बारे भरने के काम आती है. सेकंड यूज़ है इसका, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज कूलिंग मीडियम इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये जो गैसेस हैं, जो अदर गैसेस हैं या उन्हें ठंडा करने के काम आती है, तो इसे हम एज अ कूलिंग मीडियम भी यूज़ करते हैं. थर्ड है लिक्विड हीलियम फाइंड्स यूज एज कायरोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर. लिक्विड हीलियम जो है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इट इज़ 4.2 केल्विन, सो इट इज़ यूज्ड एज अ कायरोजेनिक एजेंट.
The meaning of cryogenic agent is any experiment which do in at low temperature. This is called cryogenic. क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि कम ताप पे जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड क्रायोजेनिक. सो लिक्विड हीलियम बिकॉज ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स It is a cryogenic. क्रायोजेनिक एजेंट. It is cryogenic agent. लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर पे हम जो है तो ये बहुत कम ताप उत्पन्न करने के काम आती है. ये इसका तीसरा उपयोग है. नेक्स्ट इसका यूज़ है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स विच फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI सिस्टम इन मेडिकल फील्ड. मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है. तो ये जो है एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है, पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का फॉर्म करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स में और MRI में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में. नेक्स्ट इसका यूज़ है, इट इज़ यूज एज डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस बिकॉज ऑफ इट्स लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड. ये जो ब्लड में ये कम सॉल्युबल होती है, मिक्स नहीं होती है अच्छे से ब्लड में, जिसकी वजह से ये एक डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन यूज़ की जाती है. जो स्कूबा डाइविंग करते हैं, गोताखोर हिंदी में बोला जाता है, तो जब वो जाते हैं पानी के अंदर तो वहाँ वो सिलेंडर लेके जाते हैं. जो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें हीलियम की भी कुछ परसेंटेज भरी जाती है. तो क्योंकि यूजेस ऑफ नियॉन सॉल्युबल होता है, वो हम देखेंगे अब. तो नियॉन इज़ यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड फ्लोरोसेंट बल्ब्स फॉर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पसेस. जो नियॉन है इसका उपयोग विज्ञापनों, साइन बोर्डों और वायुयानों के प्रकाश ग्रहों में होता है. जो आप देखते होंगे शाइन करते हुए बोर्ड होते हैं, तो उसमें नियॉन का यूज़ किया जाता है. नियॉन का बेसिकली ऑरेंज कलर होता है, तो ऑरेंज कलर जहाँ होता है वहाँ नियॉन गैस यूज़ की जाती है. नियॉन बल्ब्स आर यूज्ड इन बॉटेनिकल गार्डन्स एंड इन ग्रीन हाउसेज. ग्रीन हाउसेज और बॉटनिकल गार्डन्स में भी नियॉन के जो बल्ब्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ द यूजेस ऑफ आर्गन. आर्गन के हम यूज़ देखेंगे. तो आर्गन जो है इसका यूज़, इट इज़ यूज मेनली टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेस. जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होती हैं, जैसे हम मेटल्स और अलॉय बनाने में, मींस वेल्डिंग करने में मेटल्स के या फिर अलॉय बनाने में इसका यूज़ करते हैं. वहाँ अगर हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है तो हम आर्गन का यूज़ करते हैं, बिकॉज आर्गन इज़ अ इनर्ट गैस. नेक्स्ट इट इज़ यूज फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब में भी ये गैस भरी जाती है, आर्गन. इसके अलावा इसे लेबोरेटरी में भी यूज़ किया जाता है, लैब में भी इसका यूज़ होता है फॉर हैंडलिंग सब्सटेंस दैट आर एयर सेंसिटिव. जो एयर सेंसिटिव होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस में आर्गन का यूज़ किया जाता है. तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ आर्गन. If we will talk about the uses of xenon and radon, so xenon and krypton, so there is no significant uses of xenon and krypton. They are used in light bulbs designed for special purposes. Other